तो फॉर्चुनेटली मेरे उस टीम चैलेंज में ऐसा हुआ कि मेरे साथ दीपिका थी। मेरा पार्टनर ऐसा नहीं था कि मतलब मुझे थोड़ा डरना चाहिए था कि इसकी एक्चुअली अच्छी होगी कि नहीं। पोहा अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया। आई डोंट थिंक आई एम गोना गो देयर। पोहा खाने के बाद करण ने अग्री किया कि आप खाना बना सकते हो। He has loved all of the things that I've made for him, and he himself is shocked. If I have to do masti with any of the judges, the fun can only be done with Chef Vikas. अच्छा, तेजा का सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट इन मुंबई कौन सा है कि यहाँ का ये डिश कौन सी है? Hi, this is Tejasvi Prakash and you're watching me on Midday. स्वरागिनी की रागिनी ने बिग बॉस के घर में सबके दिलों पर राज किया, मगर खतरों के खिलाड़ी ने अपने पोहे से करण के दिल पे वार किया। Hello and welcome to Midday. This is Shachi Chaturvedi and today in conversation with me is one and only Tejasvi Prakash. Hi Teja, welcome to Midday. Thank you so much. How are you feeling? Very good, a little tired, I'll be honest, and I'm feeling very easy. Yeah, easy peasy. I can see the marks still there. It's still there. It's still there. I think it's going to be with me for a very, very, very long time. But yeah, so it's going to be, I hope it's worth it. It better be worth it. Teja, you're doing amazing in Celebrity MasterChef. I have been watching the show. Thank you. पोहा खाने के बाद करण ने अग्री किया कि आप खाना बना सकते हो। मैंने जितना भी कुछ सीखा है इस शो पे और जितना मैंने अपनी मेरी culinary skills को seriously लिया है और अपनी चीजें घर पे बनाई है, he has loved all of the things that I've made for him and he himself is shocked. Okay. कि यार ये कितना अच्छे से बनाती है। तो but then हाँ, पोहा अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया। I don't think I'm gonna go there. Who is the most easiest या lenient मैं बोलूँ chef judges में से? Judges में से my real life most lenient person is my brother. You give him anything, he will love it. Anything that I make, he loves. But the most lenient, nobody is lenient, to be very honest. Everybody is like, if it is a good dish, they're so happy for me that I've made a good dish. And then when it's a bad dish, then they will just say it like it's not good, it's not working, it's a bad dish, or it's like kya diya hai, or like nobody is lenient. None of the judges, yeah. I have been like, my Instagram reel section is filled with you and your conversation with Chef Vikas, calling him Chef Viku. Yeah. How is that matlab, with him off the camera? So honestly, I'll tell you with all honesty is that we have 3 judges, right? And Farah ma'am is very talkative. She's very blunt. She's very out there. And then there is Chef Ranveer, who also has a personality of being this stern person, very serious when it comes to food and stuff like that. It's only Chef Vikas who's so shy, I feel like. And he's just this man that I know that can never take my jokes in the wrong way or will ever kind of take it seriously or if ever take advantage of the attention that he gets. Never. So I felt that if I have to do masti with any of the judges, the fun can only be done with Chef Vikas because he's so, first of all, he's so quiet. So I really wanted to get him to talk. मैं कैसे मतलब इनसे बात करवाऊँ? So then I was like, let me just start having fun with him. And then when I started it, he took it so nicely. और मैं जब भी उनसे कुछ भी बोलती हूँ, वो अभी भी हमेशा सिर्फ ब्लश ही करते हैं। वो खुद उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, which is why मुझे उनके साथ ही सबसे ज्यादा ऐसे खेलना पसंद है, राइट, इन अ वे। अच्छा, जब ये सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में जाने के बाद जब आपने इतनी सारी चीजें, आई एम श्योर नए इंग्रेडिएंट्स भी कुछ पता चले होंगे, बहुत सारे। हाउ डू यू नाउ लुक एट योर वे ऑफ कुकिंग इन जनरल इन लाइफ कि अब जो भी दे दो कुछ ना कुछ बना लूंगी, या अभी भी है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस? नहीं, अभी एक्चुअली ऐसा है कि मतलब जो भी दे दूँ मैं कुछ ना कुछ बना दूंगी। बिकॉज हमारे शो की शुरुआत ही, इफ यू सी द फर्स्ट एपिसोड, उसमें ही हमें कुछ 7-8 चीजें ही मिली थी, जिसमें वो भी जो 4000 साल पहले के इंग्रेडिएंट्स है और इन सारी चीजों से, इन मसालों से ही खाना पकाया गया था। तो मैंने एक पूरी डिश बनाई है, एक कच्चे आटा मतलब गेहूं के इससे और गन्ने के रस से और कच्ची हल्दी से और कैरी से। तो हमें कुछ 5-6 चीजें ही मिली थी, बैंगन था और मटर थे। तो इन चीजों से भी मैंने एक डिश बनाई है, विच वाज द बैंगन लजानिया।
with the achar and with the चावल के मतलब गेहूं को मैंने गन्ने के रस में पकाया था, तो ये दिस डिश वाज आल्सो लाइक मैंने मैनेज कर लिया एंड उस डिश को अप्रिसिएशन भी बहुत मिली है जजेस से। तो हाँ, आई थिंक अभी ऐसा स्टेज आ गया कि कुछ भी दे दो, कुछ ना कुछ तो बना ही लूंगी। अच्छा, हु इज द फॉर यू हु इज द बेस्ट पर्सन? अगर इसके साथ पार्टनर हो गई तो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। मुझे लगता है मैं किसी के भी साथ अगर पार्टनर के हिसाब एज अ पार्टनर आई तो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगी। मुझे लगता है कि नो फेवरेट्स, बिकॉज आई फील लाइक जब भी कोई पार्टनर चैलेंज आता है हमेशा हमें 2 डिश बनानी होती है। तो मैं ऐसी हूं नहीं कि मतलब अगर मैं कोई डिश बना रही हूँ तो मुझे उसमें बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। सो आई एम मोर लाइक मैं ये बनाती हूँ, तू वो बना, एंड देन ईच टू देयर ओन, क्योंकि मैं अपनी डिश पर फोकस कर रही हूँ और उन्हें ऑफ कोर्स मेरे पार्टनर को अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो ऑफ कोर्स आई कैन ऑलवेज हेल्प देम। बट ऐसे एक ही डिश अगर बनानी हो तभी भी मुझे लगता है कि किसी भी सिचुएशन में मैं संभाल लूंगी। आई फील लाइक दैट्स अ टीम, यू कांट ऑलवेज गेट अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर। सो यू एज अ गुड टीम मेंबर इज ओनली व्हेन यू कैन मैनेज द सिचुएशन, भले फिर वो सिचुएशन कोई भी क्यों ना हो। I was watching one of the episodes और आपकी टीम थी दीपिका के साथ उसमें। I remember that and you guys made 2 dishes जिसमें से you guys had to pick one and you very easily, it was very easy, मतलब I did not see on your table there was like एक भी extra discussion हुआ हो कि दीपिका की जो dish है उसे जाने दो। On the same time, on the other table there were a lot of discussions happening with Nikki and Gaurav, with Usha ji and Archana also. तो how do you look at this ki is it easy for people to agree कि यार सामने वाले का भी डिश अच्छा हो सकता है? Like for in this Usha ji's case the decision went wrong, but in Gaurav's case the decision was right. Correct. So how do you look that situation? तो फॉर्चुनेटली मेरे उस टीम चैलेंज में ऐसा हुआ कि मेरे साथ दीपिका थी, तो हम दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग कुक्स है। तो मेरे लिए ऐसा था कि अगर मेरी भी डिश जाए तो वो अच्छी ही होगी और अगर उसकी भी जाए तो भी अच्छी ही होगी। तो ऐसा नहीं था कि मैं किसी आई मीन नो उस शो में ऐसे कोई वीक नहीं है, पर ऐसे मेरा पार्टनर ऐसा नहीं था कि मतलब मुझे थोड़ा डरना चाहिए था कि इसकी एक्चुअली अच्छी होगी कि नहीं, क्योंकि एंड द अदर बेस्ट पार्ट इज दैट दीपिका ने डिजर्ट बनाया था, जो दीपिका का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आप अगर शो देखोगे तो मोस्टली डिजर्ट बना रही है, तो मुझे पता था कि अगर उसने डिजर्ट बनाया है तो वो बहुत अच्छा ही बनाया होगा। एंड एट दैट पॉइंट जो बाकी लोगों ने खाना बनाया था मोस्टली सेवरी डिशेस आगे जा रही थी, सिर्फ हमारी थी जो डिजर्ट अच्छी हो सकती थी, क्योंकि मुझे अर्चना का जो डिजर्ट था उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि अर्चना के डिजर्ट से बेटर तो दीपिका का डिजर्ट होगा ही। तो एज अ स्ट्रैटेजी मतलब मुझे लग रहा था कि इधर जीतने के चांसेस ज्यादा है। So I was like, let's go with yours. A little Big Boss in MasterChef. It has to be a smart decision also. It is a competition at the end of the day also, right? So yeah. अच्छा, तेजा का सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट इन मुंबई कौन सा है कि यहाँ का ये डिश कौन सी है? Oh God, there are so many restaurants. मुझे हर एक अलग रेस्टोरेंट की हर एक अलग चीज पसंद है। तो अगर आप महाराष्ट्रन बोलो तो मतलब नव चैतन्य है, सत्कार है जो गोरेगांव ईस्ट में है, राइस प्लेट वहाँ पर मिलती है, राइस थाली ऐसे बोलते हैं, जहाँ पर मतलब वहाँ का मुझे कोमड़ी वड़े बहुत अच्छे लगते हैं, सोल कड़ी वहाँ की बहुत अच्छी है, नव चैतन्य के क्रैब्स बहुत अच्छे हैं। इटालियन में मुझे केस्ते का पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, जो अंधेरी में है। हाँ, दैट इज वेरी नाइस। और जापानीज में देयर इज मीजू भी बहुत अच्छा है और यावच्चा भी बहुत अच्छा है। गुजराती में सोम बहुत अच्छा है। There's one thing about you, Teja. Every time you talk about food ना, आपके ऐसे eyes ऐसे bright हो जाते हैं। मैं बहुत अच्छा से मतलब मुझे खाना बहुत पसंद है। तो हाँ, तो अलग अलग रेस्टोरेंट्स का अलग अलग खाना है। ओके, तो अगर ऐसी कोई क्विजीन आपको बोलनी हो कि ये चीज अगर मेरे को रोज भी मिलेगी तो ठीक है। इंडियन क्विजीन में आई थिंक आई लव गुजराती फूड। आई लव गुजराती फूड। और अगर इंटरनेशनल पूछे तो आई लव जापानीज। ओह, ढोकला आणि थेपला और फिर सुशी सीधा। There is no in between. No in between. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.